and welcome to yet another interesting topic from physics class 10th, that is light, reflection and refraction. So, with this chapter of light, we would be starting our journey for physics in class 10. So, this is the very first chapter and we will move on with the subsequent chapter for class 10th. So, let's start and see what interesting facts and detail we could cover and see and unfold about light and the two phenomena, that is reflection and refraction, with this chapter. So, let's start. So, before starting off with the chapter, the million-dollar question which arises in my mind is, what is reflection of light? Fine, because the chapter title says light, reflection and refraction. So, what is reflection actually? Now, take an example of you holding a torch. You hold a torch and then you put that torch in front of a mirror. Alright, so there is a mirror in front of you. You just put the torch like this. Fine, so this is the mirror, this is the torch. When the light from the torch goes and strike the mirror, you will see that the same light intensity is coming back to you. Is it like this? It happens. Yes. So, what do I mean by reflection? Reflection means whenever any kind of light is striking a surface and coming back into the same medium, into the same, surface or the medium. Fine. So, reflection of light is whenever a light source, let's suppose this is my light source. So, this is my light source and it is coming from sun, maybe, okay. When the light source is coming and striking this surface, it will not go inside or remain there. It will rebound, okay. That means it will reflect. So, whenever light is falling on to a surface, it will reflect. This means the phenomena is reflection of light. Now, there is one thing which is called sight, okay. Now, this is very clear from previous texts in previous classes that light makes us see things. Clear? Yes, of course, because whenever there is light you can see things, whenever there is no light you can't see things. But why is this? Have you ever wondered about it? No. Let's unfold. What is happening whenever a light is coming and falling on any object? Okay, whenever a light is coming and falling on any object, it is getting back, rebounding or reflecting into the same medium. Fine. So, whenever a person is looking, this is the eye of the person. So, whenever a person is looking into this reflected light, then I can see that I can see the object. Fine. Then I can say that I can see an object. Let's suppose this is the pen on my hand. Light is falling on this pen and the light which is actually striking back from the surface is actually getting into my eyes. So, I can see. So, what's this phenomena for sight? When the reflected ray comes and fall into your eye, then only you can see the object. Now, there is the TV at my back, the screen at my back, right? Can I see it right now when I'm facing you people? No. Why? Because the light is falling on it. Light is being reflected also. But is that reflected light falling on my eye? Or am I able to catch that reflected light with my eyes? No. That means the reflected light is not falling to my eye. I cannot see. So, this is called theory for sight. Now, from this, can you now understand how important this reflection is? Right? So, whenever we need to see something, there has to be the formula of reflection. So, it is so much important and we are studying it as the first chapter of physics in class 10th. Clear? Okay. Now,
whenever we say that there is a surface and my light is falling on it and getting reflected, then we can say that we can see the substance or object or matter. Now, there are two laws for which it works. There are two laws of reflection. Two laws of reflection says, the first law says the angle of incident is equal to the angle of reflection. We have studied this law before in previous classes also. What is it saying? Whenever a light is falling on a surface, clear, then to the surface if we draw a perpendicular, all right, this perpendicular we draw because we take a reference, okay, and my light will of course go and reflect striking the surface, okay. So the angle between the this perpendicular line and the light which is falling on the surface is called the angle of incident, and the angle which is formed between the normal and the reflected ray is called the angle of reflection. And the law says this angle is equal to this angle. So whenever a light is falling on to a surface and we draw a normal which is perpendicular to the surface, we see that the angle of incident will be equal to angle of reflection. Clear? Okay. Now the second law says that the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. What do we mean by this? So this is my incident ray. So this is incident ray, this is my normal, and this is my reflected ray. Clear? Now, whenever the incident ray is falling on the surface, the normal is also here and the reflected ray is also going from here. So, at the point of incident, they will all lie at the same plane. The plane of these three rays will not be up, down, or different. Clear? Okay. Now, please draw this diagram, label the rays and write the two laws of reflection. We'll move on to the next topic. Okay. All right. Now, let's move on to the next topic, which is this. Can refer to this? If I talk about reflection, then reflection happens maximum with mirror. Why? Because mirrors have highly polished surfaces. They are very shiny, they are highly polished, and they reflect 99.99% of the light which is falling on them. So, the topic says the image formation by a plane mirror. Okay. Now, if we see a mirror in front of us, what do we see? Our image. All right. Now, our image is exactly same as what we are in the mirror, right? The size is same, structure is same, everything is same. How do we get it? Let's understand. So, this is referred to my image formation in my plane mirror. So, this is my plane mirror. All right. Now, what's happening here is this is my object. All right. This is my object. Now, this object is a pencil, and from the pencil, we can see that there are rays which are going. All right. What are rays? One ray is going here, the other ray is going here, and it is striking back, because whenever a ray will go and strike the mirror, it will come back in the same area.
So whenever it is going like this, it will reflect. This ray is going like this, it will reflect. Clear? Now, are these rays meeting at any point, so that we can say that there is, somewhere it is meeting and then there is image formation which is happening? No. So what do? We extend the reflected rays. We extend the reflected rays and we draw the image which is behind the mirror. Clear? So in my plane mirror, the object is at behind the, sorry, the object is at front of the mirror and the image which is formed is at behind the mirror, because the rays are not actually meeting anywhere and creating an image. Otherwise, it is going backward and there is a virtual image which is being produced in my plane mirror. And look at the size. The size of the object and the size of my image is exactly same. Alright. So, it's exactly same if this is my observer. Now, there is one thing to be kept in mind also. Whenever we say plane mirror, there is a term called lateral inversion. एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. ओके, अब ये लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि आपको लेफ्ट का राइट दिखता है, लेफ्ट राइट का लेफ्ट दिखता है. बिकॉज जब आप यहाँ से देखते हो, जैसे कि मेरे सामने कोई मिरर है, तो मेरी जो राइट जो रे है वो जा रही है स्ट्राइक होकर लेफ्ट की तरफ आ रही है, और जो राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ है वो जा रही है और लेफ्ट की तरफ स्ट्राइक बैक हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे. तो मुझे क्या दिखता है? लेटरल इन्वर्जन. राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट. क्यों? क्योंकि मुझे कौन सी रे से अपने आंखों में इमेज फॉर्म होती है? मेरे रिफ्लेक्टेड रे. फाइन. So this is all about the image formation in my plane mirror. We have different types of other mirror as well other than the plane mirror. तो हमारे पास सिर्फ प्लेन मिरर्स ही नहीं होते हैं, राइट? हमारे पास डिफरेंट तरह के मिरर्स होते हैं जो कि प्लेन मिरर से थोड़े अलग होते हैं. वो कौन कौन से मिरर होते हैं? लेट्स सी हियर. सो वी हैव स्पेशल काइंड्स ऑफ मिरर विच इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर? कुछ नहीं. देखिए, अगर मैंने एक स्फेयर लिया ग्लास का, ओके, ये कांच का स्फेयर है और मैंने इसके अंदर वाले साइड को ना पेंट कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट से पेंट होता है मेरा मिरर, ठीक है ना. तो अगर मैंने अंदर वाली साइड को पेंट कर दिया तो मेरा बाहर वाला जो साइड है वो हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना. उधर इस लाइट आएगी और स्ट्राइक होगी. और मैंने इतना पोर्शन काट लिया, क्लियर. अब मैंने इस पोर्शन को काट के यहाँ ट्रांसफर किया, ठीक. अब मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसा उभरा हुआ सरफेस है, कन्वेक्स टाइप. तो जब मैंने इसको यहाँ पे एग्जैक्टली प्लेस किया, तो देखो मैंने ऐसे प्लेस किया, ये मेरा कोटेड सिल्वर नाइट्रेट कोटेड सरफेस था और इस तरह से आया. तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर निकला. तो यानी कि स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं, बस एक स्फेयर ऑफ ग्लास जिसको मैंने पेंट कर दिया, उसे काट करके निकाला. क्लियर. और यही स्फेयर का एक सेंटर भी होगा, एक रेडियस भी होगा, एक डायमीटर भी होगा, है ना. अभी आप ये चीज जान करके रख लो, हम पढ़ेंगे आगे कैसे कैसे होता है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें जिसमें कि एक स्फेयर बनाते हैं और उस स्फेयर को बाहर से कोट करते हैं. अभी मेरा स्फेयर है और इसको मैंने बाहर से कोट किया, ठीक है. मैंने बाहर से कोटिंग कर दी और अब मैंने ये वाला पोर्शन काटा, ठीक है. बाहर से कोटिंग कर ली, मतलब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है. ठीक है. अब मैंने ये वाला मिरर लिया और ये जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग है, मतलब इसमें मेरी कोटिंग है सिल्वर नाइट्रेट की, और मैंने इसको यहाँ पे रखा, देखो कैसे, ठीक है. तो यही मेरा वो अंदर वाला सरफेस था जो रिफ्लेक्टिंग था, और ये बाहर वाला जो सरफेस है वो कोटेड है. तो इस तरह का जो मिरर आएगा वो थोड़ा केव टाइप का बनेगा. तो ऐसे में मेरा मिरर होता है कनकेव. और अगर वैक्स टाइप का साइड आया जो कि मैंने अंदर की साइड पेंट किया था, वो हो जाएगा मेरा कन्वेक्स मिरर. तो यहीं से ओरिजिन होता है हमारे दो स्फेरिकल मिरर का. स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं, एक ग्लास स्फेयर मान लो और उसको कभी बाहर से पेंट कर दिया तो अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग, यानी केव सरफेस रिफ्लेक्टिंग. अंदर से पेंट करा तो वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग. वहां से बना मेरा कन्वेक्स
एंड कनकेव, क्योंकि वो स्फेयर से कट के बने हैं तो यानी कि वो एक सेंटर ही होगा। क्लियर? अब ये दो टाइप्स के मिरर जानने के बाद, क्या क्या दो टाइप के मिरर है, कनकेव एंड कन्वेक्स, जानने के बाद हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, किसी भी स्फेयर का सेंटर को हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा एक कनकेव मिरर है, तो जो सेंटर हुआ होगा ना इस स्फेयर का, जो सेंटर रहा होगा उसी को मैं बोलूंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वैसे ही अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो इसका भी कोई सेंटर रहा होगा, तो ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कर्व डिपेंड करता है, ऐसे कर्व, अगर मैं कर्व को आगे ऊपर नीचे बड़ा छोटा करूं तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो चेंज होएगा अकॉर्डिंग टू माय स्फेरिकल कर्वेचर। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट आता है मेरा फोकस। फोकस पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट इन द कनकेव मिरर और appears to meet in the convex mirror after reflection। ठीक है, अब ये हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए मैं इधर दिखाती हूँ, अगर ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो है ये मेरा स्फेयर का रेडियस हो गया, तो इसको मैं बोलती हूँ, ये जो लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगा इसको मैं बोलती हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं हाफ में डिवाइड कर दूं, क्लियर, अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ में डिवाइड करके एक मिड पॉइंट बनाऊं तो वो मेरा बनता है फोकस। ठीक है, अब मैंने ये बोला आपको कि ये जो लाइन है इसी के ऊपर बना है, क्यों? लेट्स सी, अगर मेरा यहाँ पे, लेट्स सी, अगर ये मेरा एक कनकेव मिरर है और ये मेरा सेंटर है, तो मैंने सेंटर से पास करते हुए एक लाइन बनाई जो कि मेरा मिरर को भी पास करता है। इस सेंटर लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है और प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होगा वो कहलाएगा मेरा फोकस। तो यहाँ जो उन्होंने बोला है ना कि एक पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में होता है, ठीक है ना, एट विच द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब अगर मैं कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊं ना बच्चे, तो वो सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे ही आके मिलती है यहाँ पे कनकेव में। और यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो फिर ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन तो ऐसे होगा क्योंकि वो उभरा हुआ सरफेस है, बट दे अपीयर टू मीट एट द फोकस। यहाँ पे लिखने का मतलब यही था। I hope this is all clear. These two terms are very important. These diagrams are very important. Please draw this diagram while we move on to the further topic in this chapter. All right, let's move on. Okay, now अभी हमारे पास टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गुजरता है एंड इट इज टचिंग माय मिरर, दिस इज कॉल्ड माय प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, नाउ इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे मेरा फोकस भी होता है मिड पॉइंट पे। क्लियर? तो अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पी एंड सी, पी सी तो हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पी क्या है? पी इज द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस इज टचिंग माय मिरर। एंड व्हाट इज पी? अगर मैं एक कर्व मिरर लूं यानी कि एक स्फेरिकल मिरर लूं, अच्छा बता सकते हो ये कौन सा मिरर है, कनकेव या कन्वेक्स? अगर ये अंदर के साइड का रिफ्लेक्टिंग है और केव की तरह दिखा रहा है तो यानी ये मेरा कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ठीक है, तो अगर मैंने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरा एक लाइन पास हो रहा है, यहां से लेके यहां तक जो है ना मेरा पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट होगा ऑन द मिरर दैट इज कॉल्ड पी। तो एक
लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सी से और पी से होके निकलता है, वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज जॉइनिंग पी एंड सी. अब फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ कुछ नहीं होता. अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधे में डिवाइड कर दे तो वो फोकस पॉइंट हो गया. ओके अब यहाँ फोकस पॉइंट से पी तक का जो डिस्टेंस है वो, या मिरर तक का जो डिस्टेंस है, वो हो गया हमारा फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड माय फोकल लेंथ. अब जब भी हम कभी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है ना, जब भी हम कभी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि हमारा इमेज, अगर हमने कोई स्फेरिकल मिरर लिया है तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, आगे पीछे, बड़ा छोटा, डिमिनिश बनेगा या रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, किस तरह का इमेज होगा अगर हम लोग एक स्फेरिकल पर्टिकुलर मिरर यूज करते हैं, चाहे वो कनकेव या कन्वेक्स हो. तो उसके लिए हमें, हमारे तो बहुत सारे रेज आ रहे हैं ना बेटा. अगर एक नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट है, उसमें से इफ वी take out the rays, there are numerous rays, but we are going to take only 4 types of rays in which we will try and make the image for the particular spherical mirror. How? Let's do it now. सबसे पहला रे जो होगा, सबसे पहला एक रे लेंगे, the ray which is parallel to the principal axis. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी कभी रेस पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो कौन से पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, पिछले स्लाइड में पढ़ा था. वेरी गुड, फोकस पॉइंट पे. तो देखो क्या होता है, ये मेरा कॉनकेव है, ठीक है, ये मेरा कॉनकेव है. बताओ कैसे पता चला? क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग है और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है. क्लियर? तो अब एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस. इससे पैरेलल आई तो कहां जाकर के मिलेगी? एफ पे. क्लियर है? ये फर्स्ट रे है. वैसा ही हम लोग देख लेते हैं कन्वेक्स में भी. कन्वेक्स मतलब मेरा अंदर वाला जो साइड है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है. तो एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. कहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस? ये. ठीक है, तो जैसे ही आई, अब ये तो क्या उभरा हुआ सा मिरर है, तो जैसे ही आएगी वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी. सो दिस इज समटाइम आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर एज वेल. तो ये इधर की तरफ डाइवर्ज हो गई. अब ये रियल में तो कभी नहीं मिलती, लेकिन इसको वर्चुअली खींच के मिलाना पड़ता है एट एफ. इफ दिस इज माय सी and this is my radius of curvature, this will be my f at that side, because ये जो स्फेयर है ये ऐसे बना है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, वो इस तरफ बनेगा मिरर के, इस तरफ नहीं, क्योंकि इस तरफ तो वो स्फेयर है ही नहीं. क्लियर? बट हमारा पॉइंट क्या प्रूव करना था कि अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे आता है एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, इट विल गो एंड मीट एट द focus point. So it appears to pass through the principal focus, because actually in convex mirror, it is a convex mirror. In actual, at actual, the ray never meets. Okay, now let's take that second ray. Second ray को हम कहाँ से पास करवा रहे हैं? It is passing through the focus, through the principal focus. ठीक है, अब ये मेरा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगेन, सो ये कनकेव मिरर है. ठीक है, अब कनकेव मिरर है तो ये मेरा प्रिंसिपल फोकस है. यहां से मेरी रे आई, यहां से जैसे मेरी रे आएगी ना बेटा, वो ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये उसके पैरेलल जाएगी. क्लियर? ये दूसरा फंडा कि अगर कोई प्रिंसिपल फोकस से होते हुए रे आ रही है तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द पॉइंट, इट इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देख लेते हैं अब, यहाँ तो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस का यहाँ पर है, तो हम अपियर कर लेते हैं कि मेरा जो रे है ना वो ऐसे आया है ताकि वो ऐसे गया हो. ओके, तो अब यहाँ से आया है, ये इंसिडेंट रे है, तो कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा? ये वाला, तो ये ऐसे जाएगी. क्लियर? क्लियर? सो एमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये हो गया मेरा सेकेंड टाइप ऑफ रे. अब थर्ड टाइप ऑफ रे क्या होता है? थर्ड टाइप ऑफ रे है कि मेरा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो अगर मेरा कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आया, ठीक है, ये भी अगेन कनकेव मिरर है,
तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिबाउंड हो जाएगी. ओके, लेट्स सी इन द कन्वेक्स वन. अगर क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऐसे लाते हैं हम मिरर को, सो दैट इट अपीयर्स कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही हो, तो वो दोबारा वापस इधर ही जाएगी. तो अगर ऐसे आएगी तो वो ऐसे ही जाएगी इस एंगल में. क्लियर है? तो ये हो गया मेरा when a ray passing directly through the center of curvature, it reflects along the same path. Fine, and it reflects along the same path in convex mirror too. Now the fourth type of ray is when the incident ray is oblique to the principal axis towards the pole at the mirror. तो अब ये हमारा कनकेव है, ये हमारा कनकेव मिरर है. तो ये मेरा पोल है. क्लियर? ये मेरा F है और ये मेरा C है. तो अब रे कहीं ना C से आ रही है, ना F से आ रही है, ना पैरेलल आ रही है, सीधा आई और पोल पे गिरी. कहाँ पे गिरी? सीधा आई और ऑब्लिकली पोल पे गिरी. तो ये तो एकदम स्ट्रेट नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नॉर्मल की तरफ एक्ट करेगा. तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा. तो ये ओब्लिकली ही यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे बनेगा. क्लियर है? सो दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट. सेम हम देख लेते हैं हमारे कन्वेक्स में. ये है हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड. तो यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस था, अब क्या ऑब्लिकली आई है पोल पे. तो ये पोल है तो ये ऐसे आई है. तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है तो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत नाउ माय रे विल रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली बाय स्ट्राइकिंग माय कन्वेक्स मिरर. तो ये हो गया मेरा फोर्थ टाइप ऑफ रे. तो जब भी हम एक्चुअली रे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, विल मूव फर्दर ऑन विद द चैप्टर, हमें पता चलेगा कि हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं इस चैप्टर में. तो जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें इन चारों रेज के मदद से ही अपने रे डायग्राम को कंप्लीट करना है और उसमें इमेज फॉर्मेशन होते हुए दिखाते हैं. तो जब भी हम इन चारों रेज को लेते हैं तो जहां भी ये चारों रेज आपस में स्ट्राइक करके मिलेंगे या कुछ होगा आगे देखेंगे, तब हम कहते हैं कि वहां पे मेरा इमेज फॉर्म हुआ. क्लियर? सो दीज आर द ओनली 4 रेज by which or with the help of which we are going to make the ray diagram for the chapter. Okay, चलिए फिर let's move on to the next topic, that is image formation by the spherical mirror. अब हमारे पास कितने स्फेरिकल मिरर है बताइए? तो ओके, पहला कनकेव है, दूसरा कन्वेक्स है. अब कन्वेक्स तो क्या है ना, हर बार उसको खींच के पीछे की तरफ लाना पड़ता है, तो हम वो बाद में करेंगे. ऑलराइट, पहले हम क्या देखते हैं, कनकेव. एक्चुअल में जहाँ चीजें मीट होती है वो है कनकेव मिरर, क्योंकि उसका केव सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है. तो कोई आया और सीधा उसी मीडियम में उसी तरफ मतलब रिफ्लेक्ट हुआ. तो जो हम कनकेव मिरर की बात करते हैं उसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है. देखिए ऐसा है मेरा कनकेव मिरर, रेज आ रही है, अगर पैरेलल आई तो कहाँ पे मीट करेगी, कहाँ पे मीट करेगी, सभी जाकर के फोकस पॉइंट पे तो होगी ना एक जगह कन्वर्ज. इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. चलिए अब हम देखते हैं कि अगर मेरा कोई कनकेव मिरर रखा है और मेरा ऑब्जेक्ट उसके सामने किसी भी डिस्टेंस पे है या फिर इन्फिनिटी से आ रही है, तो मेरा इमेज जो है वो कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा और किस नेचर का बनेगा. क्लियर? सी, so the first diagram which we have for the concave mirror image formation is when the object is placed at infinity. मतलब मेरा ऑब्जेक्ट उस फेयर के बाहर कहीं पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे है. ठीक है, जहां से मैंने वो कनकेव मिरर लिया है. ऑलराइट, सो मैं उसको कंसिडर करूंगी इन्फिनिटी पे. तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी जो रेज है वो सारी पैरेलल आती है. ओके बच्चा, जितने भी रेज बनाएंगे वो सब पैरेलल आएगी. ओके, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट रे कि जब रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहाँ पे मीट करती है, दे विल ऑल मीट एट एफ. ओके,
वेरी गुड। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि आपको ये बनाना और करना कैसे। आपको क्या करना है, आपको एक स्फेरिकल मिरर बनाना है सबसे पहले। फिर उस स्फेरिकल मिरर को इमेजिन कर रहे हैं कि वो एक स्फेयर से ली गई है, तो यानी कि उसका एक सेंटर है, ये उसका पी है, और सेंटर और पी से पास करता हुआ मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और इनके बीच का जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट एफ है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो अब इनसे आ रही है पैरेलल रेज, ठीक है ना। तो जब पैरेलल रेज आएगी, एरोज बनाने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन। तो जो भी रेज आएगी वो सारी की सारी कहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होएगी, एट माय फोकस पॉइंट। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट द फोकस। कैन यू सी, एट द फोकस द इमेज इज एक्चुअली बीइंग फॉर्म्ड। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, वेरी गुड। नाउ अभी हम देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। तो अब वो मेरा स्फेरिकल मिरर था ना, उसका सेंटर है सी, ठीक है। अब सेंटर जो है ना सी, उसके पार कहीं भी रखा है, पर पैर वाले उस गोले के डिस्टेंस के अंदर अंदर ही होना चाहिए, तो हम उसको इन्फिनिटी काउंट नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, काउंट बियॉन्ड सी कहीं रखा हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज माय, अगेन द प्रोसीजर इज, दिस इज माय स्फेरिकल मिरर, make the principal axis, this is the C point, this is P point, and the middle is my F point। क्लियर, ऐसे ही करेंगे। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है C के कहीं दूर, बियॉन्ड सी। तो फर्स्ट रे हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज माय फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। तो वो निकलेगा कहाँ से, एफ से। वेरी गुड, हो गया। दूसरा रे, क्योंकि हमारे पास यहाँ सी है ना, तो हम सी से गुजार देते हैं दूसरे रे को, तो इधर से ले गए हम। दूसरा रे जब इधर से आया सी से, तो वापस कब जाएगा, सी से ही चला जाएगा, ठीक है। वो ऐसे स्ट्राइक होके वापस सी से जाएगा। तो ये रहा सी। तो मिले कहाँ ये दोनों रे, यहाँ मिले। कहाँ पे देखो, सी और एफ के बीच में मिले। तो कहाँ होगा मेरा इमेज फॉर्मेशन, इट इज बिटवीन सी एंड एफ। और साइज देखो कैसा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज था, ये मेरा इमेज का साइज है। इसका मतलब जब मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पड़ा रहता है, तो उसका इमेज बनता है सी और एफ के बीच में कहीं पर, और वो छोटे साइज। क्लियर, चलिए लेट नेक्स्ट मूव ऑन टू, अब जैसे से देखिए, इमेज पहले बियॉन्ड सी था, मतलब स्फेयर से कहीं बाहर था, फिर स्फेयर के अंदर आया, मतलब बियॉन्ड सी आया, ठीक है। अब हम सी पे ही रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ओके। तो वही सेम रूल, एक स्फेयर बनाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, पी बनाया, टी बनाया, एफ बनाया। क्लियर, अब यही है मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब यहां से आया मेरा एक पैरेलल रे, जो मेरा फर्स्ट रे होता है, और वो कहां से जाएगा, एफ से। क्लियर, और दूसरा रे कहां से जाएगा, क्योंकि मेरे सी के सामने एफ पॉइंट है, तो मैं एफ से लेके जाती हूँ दूसरा रे। जब एफ से कोई रे जाता है, तो वो क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर, तो मिल गई मुझे रे। अब ये दोनों रे कहाँ मीट करती है, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल देखिए, एग्जैक्टली सी पॉइंट पे मीट। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पॉइंट यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है, तो उसका इमेज भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, पोजीशन। और देखिए, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज जो है एग्जैक्टली सेम बनता है। क्लियर, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज फर्स्ट, this is second ray diagram, this is third ray diagram, and this one is my fourth ray diagram। फाइन, तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है, अब मैंने सी पे भी रख दिया। अब मेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो जैसे जैसे हम आगे आगे ला रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इमेज कैसे बन रही है। सेम प्रोसीजर, ड्रॉ अ concave mirror, draw the principal axis, make the point F, P and C। अब now यहाँ पे है मेरा ऑब्जेक्ट, सेम प्रोसीजर, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो एफ से निकलेगा। क्लियर, और दूसरा
क्योंकि अब एफ नहीं है तो एफ से भी निकाल सकते थे, फिर हम देख सकते थे, क्योंकि जैसे एफ से निकाला तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए, ये भी कर सकते थे। पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे हम लेंगे जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। लेट्स सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे गया, उसको टच करते हुए, उसके हेड को टच करते हुए, और वो वहीं से रिबाउंड होके वापस आएगा। क्लियर? वहीं से रिबाउंड होके वापस आएगा तो कहाँ बनेगा मेरा इमेज? मेरा इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, सी के पार बन जाएगा। और देखिए साइज कितना था, छोटा सा, और अब इमेज की साइज कितनी बन रही है, बड़ी। क्लियर? तो जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, मेरा इमेज का पोजीशन पीछे आ रहा है, और साइज भी चेंज हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। क्लियर? पहले बिल्कुल छोटा था, फिर थोड़ा छोटा, फिर बड़ा, फिर सेम साइज का हुआ, फिर बढ़ने लगा। अब यहाँ पे देखिए, अब पांचवा जो मेरा इमेज फॉर्मेशन है वो है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एफ पे रखा है, सी और एफ के बीच में हो गया। अब कहाँ पॉइंट बचा है, एफ। सेम प्रोसीजर, एक कनकेव मिरर, एक प्रिंसिपल एक्सिस, पी पॉइंट, एफ पॉइंट और सी पॉइंट। अब वो एफ पे रखा है हमने, मैं अपना जो ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सेम वही कि अगर एक रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो उसी फोकस पॉइंट से निकलेगी। क्लियर? और एक रे जो है वो इधर को टच करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। तो अब आप देख रहे हो कि मेरा जो रे है दोनों का दोनों पैरेलल है। क्या कभी पैरेलल रे कहीं पे मिलती है? कहीं नहीं। बट हम सिर्फ ऐसा बोल के रख देते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर एफ पे रखा हो तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी में जाके कहीं बनेगी। क्लियर? अब इन्फिनिटी पे जाके कहीं बनेगी, वो कहाँ बनेगी उसका हमने कहीं डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, बस हमने कहा कि वो इन्फिनिटी पे बनेगी। क्लियर? ओके। नाउ हमारा जो सिक्स्थ वाला पोजीशन है वो है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। तो हमारा अब एफ पे था पहले, फिफ्थ वाला, अब एफ के भी आगे, तो यानी कि ये मेरा कनकेव मिरर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय पी, दिस इज माय एफ एंड दिस इज माय सी। क्लियर? अब पी और एफ के बीच में रखा है तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ना तो मेरे पास यहाँ एफ पॉइंट है इसके आगे, ना तो मेरे पास यहाँ पे सी पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगी, एफ पॉइंट नहीं है तो मैं ऑब्लिक रे लूंगी एक। ठीक है ना? क्योंकि अब कोई मेरे पास पैरेलल रे भेज करके प्रिंसिपल पे फोकस करवाने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट अब प्रिंसिपल के फोकस के पहले है। ठीक है? तो अब क्या करूंगी, ये ऑब्लिक रे लूंगी और इस तरह से मैं एक ऑब्लिक रे रिफ्लेक्ट करवाऊंगी। दूसरा वाला जो रे है वो मैं वही प्रिंसिपल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगी, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। क्लियर? अब ये तो कहीं भी नहीं मिल रही है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये तो कभी भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बट ये करेगी कहाँ, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। तो ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करने से ये इमेज फॉर्म करती है, और क्योंकि इमेज बैक साइड ऑफ द मिरर बन रहा है और हमने यहाँ एक्चुअल में रेस को मीट नहीं करा है, इट अपीयर्स टू मीट, दैट मीन्स at position which is between my f and p of the mirror of my concave spherical mirror, the image is appearing to form at the back side of the mirror because the rays are appearing to meet, they are not actually meeting. तो एक्चुअल जब कुछ नहीं होता तो वो वर्चुअल होता है, तो इस केस में क्या हुआ, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है कनकेव मिरर में, और साइज देखिए छोटा और ये एनलार्ज्ड बनता है। Clear? Very good. Now these ray diagrams are very important. Note down each and every detail points and diagram with the rays and especially with the arrows marked. क्योंकि ये arrows ही आपका direction बताता है कि कौन सा incident हुआ और कौन सा reflected. Otherwise it will be very confusing कि हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा incident है कौन सा reflected है. Clear? So write down all these diagrams, draw it properly. We'll move on to the next topic. All right. So I hope you have drawn all the diagrams. Let's move on to the next topic. Now in the next slide,
we would be just, you know, discussing about what we have just seen in the previous one, कि हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बना, कैसा बना, छोटा, बड़ा, रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror, this is very important. I'll give you time to note down and make this type of table so that it is very easy for you, ताकि आप जस्ट एक बार टेबल को देखो और आप मेमोराइज कर लो इन सब चीज. फाइन. तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ पे बनता है मेरा इमेज, कनकेव मिरर पे, फोकस पे, ठीक है ना. और कैसा होता है, साइज ऑफ द इमेज कैसा होता है, यहाँ पे लिखा गया है एट द फोकस, बट इट इज एक्चुअली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड. क्लियर. बट वो होता कैसा है, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट हो रही है ना फोकस में, तो रियल होता है. एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कभी रियल इमेज बनता है और जब भी कभी वर्चुअल इमेज बनता है, जब भी कभी रियल इमेज बनता है या जब भी कभी वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होता है, ओके, और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट बनता है. क्लियर. तो अब देखते हैं, अगर दूसरा पॉइंट, दूसरा पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन था, दूसरा पोजीशन कि सी के बियॉन्ड, ठीक है, स्फेयर के अंदर अंदर ही हम इमेजिन कर रहे हैं पर सी के बियॉन्ड है, तो कहाँ बनता है वो, एफ और सी के बीच में बनता है. और वो भी कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है, लेकिन वो एक्चुअल में मीट होता है, इसीलिए वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है. अब हम तीसरा डायग्राम देखते हैं. देखिए तीसरा डायग्राम क्या था, एट सी, दूसरा क्या था, बियॉन्ड सी, और कहाँ बना था, सी और एफ के बीच में. क्लियर. तो एट सी में मेरा इमेज कहाँ बनता है, सी पे ही. कैसा होता है साइज, वेरी इंटरेस्टिंग, ये होता है सेम साइज का, और क्योंकि एक्चुअल में मीट करता है तो इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड होगा. अब यहाँ से चेंज होता है सिचुएशन, जहाँ पे मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है, तो इमेज क्या हो जाएगी, वो और सी के बियॉन्ड जाएगी, तो बियॉन्ड द सी बनेगी. अब यहाँ सेम साइज जो चालू होता है एट सी से, उसके बाद जो भी इमेज बनेगा वो एनलार्ज्ड बनना शुरू होता है. इट्स अ थिंग टू बी केप्ट इन माइंड. सी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट सी पे ही अपना इमेज बनाएगा और वो सेम साइज का होगा. उसके बाद जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओगे, इमेज पीछे जाएगा और एनलार्ज होता जाएगा. तो वो भी लेकिन आपस में एक्चुअली मीट करते हैं, तो इसलिए वो रियल और इन्वर्टेड होंगे. एंड अगर वो फोकस पॉइंट पे रखा है तो मेरे सारे के सारे रेज कहाँ जाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. तो क्या होगा, क्या होगा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा. फाइन. क्योंकि जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रही थी तो मेरा इमेज जो है वो फोकस पे बन रहा था, तो अब जब मैं फोकस पे रखूंगी तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे. लेकिन हम कहते हैं कि वो हाईली इनलार्ज्ड होता है, और वो भी क्योंकि कहीं ना कहीं जाके एक्चुअल में मीट करता है, तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा. सिक्स डायग्राम हमारा था कि अब हमने फोकस से भी आगे रखा है अपने ऑब्जेक्ट को, तो बिटवीन पी एंड एफ, पी जो मिरर पॉइंट है उस पे और एफ के बीच में, तो कहाँ पे बनेगा मेरा इमेज, बिहाइंड, क्योंकि एक्चुअल में तो वो ऐसे रह जा रहे थे, इंटरसेक्ट कहीं होते ही नहीं, इंटरसेक्ट कहीं होते ही नहीं, सी ऐसे जा रहे थे. ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में, वो रेज इस तरह से जा रहे थे, तो एक्चुअल में तो वो कहीं मीट ही नहीं होंगे, तो फिर वो पीछे जाके मीट करवाते हैं, और जब पीछे जाके मीट करवाते हैं तो वो बिहाइंड द मिरर होता है और काफी ज्यादा एनलार्ज बनता है. अब क्योंकि हमारे जो रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, when they are not meeting actually, that means it is not a real image, it's a virtual image, and whenever it is virtual image it will be erect. Fine. I hope everything is clear from the tabular form, and you can just note down this table. It will be easier for you to remember and memorize all the points, and whenever there is a diagram for you to draw, for ray diagram you to draw, then आप इस टेबल को अपने दिमाग में याद रख सकते हो कि अगर हमने इमेज यहाँ रखी है तो, सॉरी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी. क्लियर.
So note down this table. We'll move on to the next topic. All right. Now let's move on to the next slide. Now अभी हमारा क्या है कि कनकेव मिरर के यूजेस क्या है. ठीक है, कनकेव मिरर के यूजेस क्या है. वी यूज कनकेव मिरर इन टॉर्च, in searchlights, in vehicles, headlights and shaving mirror. क्यों? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. शेविंग मिरर, शेविंग मिरर हम कहाँ रखते हैं? एकदम पास में, मतलब ऑब्जेक्ट, मेरा जो ये है ऑब्जेक्ट और जो मिरर है वो बिल्कुल पास. यानी कि क्या है, वो चीज जो है वो बिल्कुल ही पास है, यानी एफ और पी के बीच में है वो. ठीक है, डिस्टेंस. तो अगर कोई चीज एफ और पी के बीच में होती है तो वो वर्चुअल बनेगी पर वो एनलार्ज बनेगी. तो इसीलिए जब हम शेविंग मिरर देखते हैं ना तो हमारा फेस एकदम बड़ा सा दिखता है और हम उसको अच्छे से शेव कर पाते हैं. मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, लेकिन वो होता कैसा है? क्या वो इन्वर्टेड होता है? नहीं, वो इरेक्ट, एकदम से सीधा दिखता है. क्योंकि हमने अपने ऑब्जेक्ट को, जो स्फेरिकल मिरर है कनकेव, उसके पी और एफ के बीच में रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट क्या है? आपका फेस. तो आपका फेस कैसा बनेगा? एनलार्ज दिखेगा और इरेक्ट होएगा क्योंकि वो वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि वो कहाँ रखा है? पी और एफ के बीच. क्लियर? अब हमारे जो होते हैं व्हीकल हेडलाइट्स, उनमें डलता है कनकेव मिरर. तो जो हमारा व्हीकल का हेडलाइट होता है वो ऐसा होता है गाड़ी के सामने, उसका जो पीछे वाला पोर्शन है ना बेटा, उसके पीछे पोर्शन में हम लोग एक कनकेव स्फेरिकल मिरर लगाते हैं. सो दैट जब लाइट से रोशनी पीछे की तरफ आए, वो सारा का सारा लाइट जाके कन्वर्ज होए. क्योंकि अगर वो डाइवर्ज हो जाएगा तो आपको बाकी सारी चीजें तो दिखेगी पर आपको मेनली फोकस रोड पे करना है. ओके, सो हमारा कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज कराता है, डाइवर्ज नहीं. इसीलिए हम हेडलाइट्स पे एक कन्वर्जिंग मिरर डालते हैं ताकि हमें अपना पाथ विजिबल हो. सेम इज द थ्योरी फॉर माय सर्च लाइट और टॉर्च. टॉर्च में भी हमें एक पाथ विजिबल करना है तो हम लोग उसके पीछे वाले पोर्शन में जहाँ पे बल्ब लगा है, हम लोग एक कनकेव मिरर फिट करते हैं ताकि जितनी भी लाइट है दैट गेट्स कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट एंड वी कैन सी द पाथ. Clear? So these are the uses of concave mirror. Next we move on to the image formation of convex mirror. Now image formation जो मेरे convex mirror में है वो बहुत ही easy है, क्योंकि इसमें दो ही तरह का image बनता है. पहला कि अगर मेरा कोई convex mirror है, ये मेरा polished side है और ये मेरा non polished side. तो अब अगर कोई भी रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है. लेट्स सपोज दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ये मेरा फोकस है और यहाँ कहीं मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये मेरा पोल है. क्लियर? अब जो कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो तो क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो वो डाइवर्ज हो जाएगा. क्लियर? वो डाइवर्ज हो जाएगा. अब लेकिन डाइवर्ज होने पर उसको हम लोग अपीयर्स टू मीट कराते हैं. विल अपीयर टू मेक देम मीट एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस. ओके, सो ये अपीयर टू मीट करवाएगा, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं होगा तो कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कि कहीं पर है मेरा विच इज इन फ्रंट ऑफ द पोल. सो ये होता है मेरा पोल. लेट्स सपोज ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस पॉइंट है और ये मेरा सी है. फाइन, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कहीं यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है. वही सेम फंडा कि मेरे प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे पैरेलल गई, तो वो जब पैरेलल जाएगी वो कहाँ पे जाकर के मीट कराएगी? वो मीट होएगी मेरे फोकस पे, पर एक्चुअल मीट तो करती नहीं है. तो हम लोग ऐसा रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं जो कि ऐसा लगे कि वो फोकस से मीट कर रही है. क्लियर? और एक और रे को हम ड्रॉ करते हैं कि जैसे वो लगे कि वो सी से पास हो रही है. तो अगर ऐसा ही रे एक आए तो उधर ही से वो वापस जाएगी. क्लियर हो गया? लेकिन दोनों के दोनों ही एक्चुअल में मीट नहीं करते, वो अपीयर टू मीट करते हैं एक जगह पे विच इज बिटवीन फोकस एंड पोल. और ये बनाता है मेरा यहाँ पे इमेज विच इज सी. क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट बने. फाइन, बट एट द बैक साइड. फाइन, नाउ let's see the tabular form of the convex mirror which like we did for the concave mirror.
क्या होता है, इन्फिनिटी में हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखा तो कहाँ बनेगा, वो फोकस में बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है। अब दूसरा कि हमने कहीं पर मिरर के सामने रखा है, ठीक है, वो कहाँ बनेगा, पोल और एफ के बीच में बनेगा, वो भी छोटा होगा लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्लियर। और अब हम आते हैं कि ये एक मेन पॉइंट जिसमें लिखा है कि इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होएगा ही, पर वो छोटा भी होगा, डिमिनिश मतलब स्मॉल। क्लियर। लेट्स लुक अप द यूजेस फॉर द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कन्वेक्स मिरर वहां यूज होता है जहां पे हमें एक वाइडर रेंज चाहिए, क्योंकि वो डाइवर्ज करता है तो हमें हर पूरी जगह की व्यू दिखाएगा। तो रेयर व्यू मिरर में यूज होता है इन द विंग्स ऑफ द व्हीकल, ठीक है, स्कूटी का विंग हो या कार का विंग हो, जो रेयर व्यू होता है उसमें हमें दिखाता है ये कन्वेक्स मिरर के हेल्प से। फाइन। So and as corner mirror for road safety, आपने देखा होगा कभी डाइवर्जिंग पॉइंट हो जहाँ पे कॉर्नर हो, वहां पे एक ऐसे गोल सा मिरर होता है कन्वेक्स सा, ठीक है ना, वो क्या करता है, कहीं इधर से भी अगर कोने से गाड़ी आए या इधर से भी कोने से गाड़ी आए, वो उस मिरर में इमेज फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि वो एक वाइडर रेंज को कवर कर रहा है। फाइन, इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर। तो इसीलिए कॉर्नर मिरर में हमेशा रोड सेफ्टी के लिए कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, as well as at the corners of the large building। तो हम लोग जब लार्ज बिल्डिंग के कॉर्नर्स में लगाते हैं, लार्ज बिल्डिंग का जो कॉर्नर होता है उसमें यहाँ से भी गाड़ी आ सकती है, यहाँ से भी गाड़ी आ सकती है, so we put the convex mirror in that corner so that we can get a wider view of both the sides। Clear? So I hope, please note down this, I hope the topic for reflection, spherical mirror and the image formation with the uses of the spherical mirror is, well versed and complete now. And then we will move on to the next topic, that is mirror formula, after the after you complete the tabular form and writing all the uses. All right, I hope you have written down the tabular form and you've written down the uses of the convex mirror. Now, as I have told you earlier that after this we will be doing our mirrors formula. So now what is mirrors formula actually? To understand this, let's suppose there is a mirror, a spherical mirror in front of you, and we need to know where, if I am standing as an object, my image would be formed. Fine. Or if I am like 5 feet tall or 5.5 feet tall, a person is there, then his or her image would be how much? That means how much in height. So for that we use a formula which is called mirror formula. But to understand this, we have to understand something as coordinate. Now, do you know what is coordinate? In coordinate geometry, if you have studied in class 9, we have x axis and y axis, right? Now, in x axis and y axis, this side of x axis is always positive and upper y axis is always positive. Left side of the x axis is always negative and downside of y axis is always negative. Are you familiar with this? I hope yes, because we have all done this in the coordinate geometry in class 9. Now consider this point. I'll use with another pen. Now consider this point as the coordinate point for my this. So this is my x axis, see it's written here, and this is my y axis. Now you're familiar. Now everything which is this side of x axis would be positive. Can you see this? The distances towards the right side will be always positive. Now everything on this side, that is on the left side, the distances toward the left side will always be negative. Why? Because in my x axis, my negative side is my left side. Clear? Now let's go with y axis.
Now from this coordinate point, if I go upward, my y-axis is always positive. Fine. So my height, if it is upwards toward the x-axis, it will be positive in nature. Clear? Now same ways, if my image or anything which is, produced downward in the y-axis, what will I be saying? That anything which is downward to the y-axis will be my negative value. Is this clear? So this is, if you get confused with why this is positive, why this side everything is negative, why upper side is always positive, why down side is always negative, don't get confused. Just follow this simple coordinate geometry aspect, as this is my 0 point and this side is positive, this side is positive, this side is negative, and this side is clear. I hope this is clear. Now let's understand what else do we have with this structure. Now can you see that this is my object? Now this object is in front of my mirror, so this is my mirror. Now this object has a distance from the mirror. Can you see this? This is the distance of my object from the mirror. So this is called the distance towards the left side, which is from the object to the mirror. So if it is on the left side, so this will be a negative value. Is that clear? Fine. Now the incident ray will come and strike from here. Fine. Okay. Now whatever will happen, how the rays will go, we have already understood with the help of the ray diagram. Now look here, there is another aspect as my image. Fine. So this is my image, and my image is formed downwards. Now if we go by this, what if we get a downward thing? It will be minus. So whenever you are getting a downward value, you are getting it as negative. Is this clear? Now this is for your image, and everything which is inverted downward will be real, and if you see this mirror, this is a concave mirror. Fine. Now let's come to the formula for mirror. Okay, so we call this as mirror formula, and my mirror formula states that 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. Now what is this v, u and f? Let's understand this first. Now v is considered to be the distance which is between the object and the mirror. Where is the object kept? This. Where is the mirror kept? This. What is the distance between object and mirror? This. So this is my u. Now tell me, will my u be only u or negative u? Yes, because it is this side distance. This is my central point. Look here, refer to this. So this u will be negative. Clear? Now if my image is forming here, so this is my image. Now if my image is forming here, what is my v? V is the distance of the image from the mirror. Where is the mirror? Here. Where is the image? Here. So this is the distance of my image to my mirror. So this we write as v. Now look here, one important thing. My v is also in this, u is also in this direction. My v is also in this direction. Now tell me, both of my u and v will be negative or not? Negative? Right. So this also will be negative. Clear? Now the third thing which we should know is for f. Okay. Now what is f? F is considered to be as the focal length of the mirror. In my previous slides, I have already told you what is the focal length. Focal length is that, the distance from the focus point. Now what is focus point? It is that point wherein if all the incident rays are parallel, it will go and meet at one place. So this place would be called as focus point. Clear? Now from the focus point to the mirror, the distance will be called as my focal length. Clear? Let's look again. So what is my mirror formula says? It says 1 upon f is equals to 1 upon v
plus 1 upon u. Is this clear? What is f? Focal length. From the focus point to the mirror, the length is called focal length. What is v? The distance between the image and the mirror. What is u? The distance between the object and the mirror. Clear? So this is my mirror formula, basis on which we will solve many questions. हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कैसे कैसे अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है कहीं पर तो उसकी इमेज कहाँ बनी, अगर हम लोगों के पास इमेज ऐसी है तो फिर और इस डिस्टेंस पे है तो मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज पता है कि कहाँ कहाँ बन रहा है तो हम बता सकते हैं कि उस मिरर का फोकस पॉइंट कहाँ पे है, जब हमें पता चल जाएगा कि फोकल लेंथ कितना। क्लियर? तो ये सब एस्पेक्ट जब हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, दिस कम्स एज द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द मिरर्स फॉर्मूला। क्लियर? देयर इज वन मोर एस्पेक्ट इफ वी नाउ नो द मिरर फॉर्मूला, देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब आप देखिए, जब मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया था तब कहा था कि ना लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे बन रहा है बहुत छोटा, फिर धीरे धीरे ना ऑब्जेक्ट आया आगे और थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू किया, जब आगे और गया मतलब सी पे गया तो वो सेम हाइट का बना, जितना मेरा ऑब्जेक्ट था उतना ही मेरा इमेज बना, राइट। जैसे जैसे मेरी ऑब्जेक्ट को मैं अपने स्फेरिकल मिरर के आगे ले जाऊंगी, मेरा जो इमेज है वो आगे चला जाएगा और एनलार्ज हो जाएगा। क्लियर? जब साइज में डिफरेंस आता है, या तो छोटा या तो बड़ा, तो हम ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन तो हो रहा है। तो मैं अगर ऑब्जेक्ट को आगे ला रही हूँ, इमेज पीछे जा रहा है लेकिन बड़ा हो जा रहा है, तो मैग्निफिकेशन है। तो हम एक टर्म देते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना था और अब इमेज कितना बना, that is called magnification which is represented as m। तो m को हम किससे नापते हैं, किससे तोलते हैं? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो कैसे कि हमारा इमेज का हाइट कितना। क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जैसे जैसे मेरी ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग आगे बढ़ रही है मिरर की तरफ, वैसे वैसे मेरे इमेज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर वो दूर हो रही है। और जैसे मेरी इमेज की डिस्टेंस दूर हो रही है, मेरा ऑब्जेक्ट लार्ज होता जा रहा है। ये रिलेशन है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, उसका डिस्टेंस यानी कि u में चेंज हो रहा है, तो v इस तरफ हो रहा है, फाइन। यानी कि u अगर आगे जा रहा है v इस तरफ आएगा, यानी u अगर कम हो रहा है v लार्ज होएगा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे v बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे इमेज का साइज बढ़ता रहता है। क्लियर? तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा मैग्निफिकेशन v यानी इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है? हाँ करता है, बट हमने यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू लिया है माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो v और u दोनों किस साइड में, इस साइड में, तो हम बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है? सो व्हाट इज माय मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन को हम दो तरीके से देखते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कितना चेंज है, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, दैट इज माय। I hope this is clear. Everything will be more clear if you note down the mirror formula with these information, and of course the sign convention diagram. I'll make it easy for you by rubbing it off so that you can write down the necessary terms which is there in the slide. Then we'll move on to the next topic of the chapter, which is called refraction, in another part of this same video. Thank you.